गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। राइट, इसके दो चैप्टर हमने पढ़ चुका हुआ है। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, हमने वो पढ़ चुका है सिविक्स में। नाउ थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। Now, in the last chapter, we study the working of constitutions and election procedure. Political parties is a link that connect common people, democracy, representation, elections. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Now, political parties exist in all democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in a democracy. In this chapter we will study the political party system in India. इसके पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा है। राइट, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री आपस में कम्पीट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पावर, फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। राइट, एक दूसरे से क्या करते हैं, वो कम्पीट करते हैं। ठीक है। नाउ इन आवर स्कूल एंड द सराउंडिंग you must have seen some group, institution, organization working to achieve some objectives. Right, now some organization take initiatives in resolving social problems. You may have read about the various movements and their works. अभी कैसा होता है, तुम्हारे सराउंडिंग में स्कूल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट, वो लोग ग्रुप बना के करते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्राई, जो सोशल प्रॉब्लम क्या करते हैं, रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ बेटा, हाँ, that take initiative in resolving social problems. You may have read about the various movements and their works, just as there are active groups, institution, movements. Similarly, there are political parties who contest election. Political parties are also a kind of social organization. पॉलिटिकल पार्टीज भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। राइट, सबका अलग अलग एजेंडा होता है, सबका अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, हर एक पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। जो अलग इंस्टीट्यूशन है और अलग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, अलग संगठन है, और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत डिफरेंस है। राइट, organization in society difference is in the goal and style of working of political parties and other organizations. On this background, we can say that when people from organization with the objective of achieving political power and participate in electoral process, such organization is called political parties. Now, who are known as political parties? Political parties means they participate in electoral process. Electoral process मतलब हम जिसको इलेक्ट करते हैं, वोटिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बोलते हैं ना, एक एजेंडा, राइट, एक एजेंडा लाते हैं, एक विचारधारा लाते हैं, राइट, पावर में आने की इच्छा रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज thus can be described as a group of people who aim to contest election, win election and get power and establish a government of their parties. राइट, पॉलिटिकल पार्टी उसको ही बोलते हैं जो इलेक्टेड प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, कंटेस्ट करे, राइट, और अपनी गवर्नमेंट बनाए, पावर में आए, अपनी गवर्नमेंट बनाए अपनी पार्टी की, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ फॉलोइंग आर, सबको आवाज में क्लियर आ रही है? राइट, फॉलोइंग आर some important characteristics of political parties. Now, to be in power. Now, these are the characteristic of political parties, right? The first one is to be in power. Achieving power through elections is the main objective of political parties. Thus different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. अभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे क्या करती है, कम्पीट करती है, राइट, पावर में आने के लिए, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। राइट, इसमें कोई गलत चीज नहीं है एक दूसरे कम्पीट करना, लेकिन बट जो कंपटीशन होता है वो फेयर होना चाहिए, राइट, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, नाउ इसका मीनिंग क्या पढ़ लेते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज. Parties have a particular stand about social issues. This together make party ideology. Now, हर एक पार्टी का क्या होता है, अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, अलग अलग विचारधारा होता है। अंडरस्टूड, अलग अलग सोशल इशू पे काम करने का मकसद होता है। ठीक है, जो अलग अलग पार्टी होती है वो अलग, कभी कैसा होता है, हमारे कंट्री में जो मोस्टली पार्टीज खड़ी होती है वो किसानों को अपना मुद्दा बनाती है, राइट, अल्टीमेटली फार्मर्स को मुद्दा बनाती है अपनी, कि फार्मर को हम ये सहूलियत देंगे, फार्मर के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, गरीब इंसान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, राइट, ये अपनी सबकी विचारधारा है मोस्टली।
ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्यूज लेके आते हैं, सोशल इश्यूज कम्पीट करने के लिए। अभी कैसा होता है ना, अभी तुम किसी को इलेक्ट करोगे लेकिन क्यों, बात आ जाती है क्यों। अभी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कोई कैंडिडेट राइट किसी पार्टी से, तुमको उसको इलेक्ट करना है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं उसको क्यों इलेक्ट करूं। तो अल्टीमेटली कैसे मालूम पड़ेगा क्यों, जब तक वो अपनी विचारधारा सबके सामने लाएगा नहीं, अपना एजेंडा लाएगा नहीं, अपना आइडियोलॉजी सामने लाएगा नहीं पार्टी, तो मालूम पड़ेगा नहीं हमको इलेक्ट क्यों करना है। Right? The people who consider a specific party ideology as expectedly support the political parties. Social support received by a political party is called the mass base of political parties. Right? Social support मिलना political parties को. In modern day, ideologies of all political parties appear to be similar. जैसे तुमको बताया मैंने, अभी इस मॉडर्न एरा में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सिमिलर ही होता है। राइट, अब पहले ऐसी पॉलिटिक्स नहीं रह गई, अब मॉडर्न पॉलिटिक्स हो गई है, अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए, जो पब्लिक पढ़ी लिखी हो गई है, तो जब तक तुम उनके रिलेटेड काम नहीं करोगे, उनके रिलेटेड तुम आइडियोलॉजी विचारधारा लाओगे नहीं, तो तुमको वोट नहीं करेंगे, तो तुमको इलेक्ट नहीं करेंगे वो। अंडरस्टूड? Say similar, hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. इसलिए क्या है, वो डिफरेंट हो गया है, वो डिफिकल्ट हो गया कि हर एक पार्टी को उसके आइडियोलॉजी विचारधारा पे डिफरेंशिएट करना, राइट। टू हैव अ पार्टी एजेंडा, ये तो एजेंडा मतलब टॉपिक होना, राइट। हर एक पार्टी का एजेंडा होता है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग एजेंडा होता है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर द पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। जो पार्टीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपना पार्टी की विचारधारा पे एजेंडा प्रिपेयर करती है, राइट, टॉपिक्स प्रिपेयर करती है। दे इंप्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। जो भी टॉपिक एजेंडा होता है, ये कैसा होता है ना, इलेक्शन पावर में आने से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है पब्लिक को बताती है हम पावर में आएंगे तो ये चीज करेंगे, ये चीज करेंगे, तो उससे अलग अलग सबका एजेंडा होता है, ठीक है, जो पब्लिक सामने रखना होता है उनको। पब्लिक सुनेगी, पब्लिक को अच्छा लगेगा कि हाँ, अगर अगर वो लग रहा है कि जो बोल रहा है उसमें अगर क्षमता है, काबिलियत है वो करके दिखाने की, तो ऐसा पब्लिक क्या करती है, उसको इलेक्ट करती है, राइट। Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. अगर political powers में आते भी नहीं, अगर पावर उनकी सरकार नहीं बनती है, राइट, अगर पावर में नहीं आते वो, हाँ मैं कहा था, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर पावर में नहीं आती है अपने, तो फिर भी क्या करते हैं वो, जो पब्लिक का सपोर्ट, पीपल सपोर्ट लेके वो अपने एजेंडा पे काम करना शुरू करते हैं, एजेंडा उठाते हैं अपना। तो स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, political party establish a government and govern the nation. The political parties which get majority in elections form the government. The parties which do not get majority act as a opposition party. Now अभी कैसा होता है, और जिसको ज्यादा सीट मिली, जो मेजोरिटी में आया, वो अपनी गवर्नमेंट क्या करता है, फॉर्म करता है, और जिसको मेजोरिटी सीट नहीं आई, राइट, जो हार गया, उसको वैसा अपोजिशन क्या करता है, वो ऐड करता है, अपोजिशन पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, political parties work as a link between the government and the people. Political parties communicate the demands and complaint of the people to the government. The government tries to get support of the people for its policy and program through political parties. ना अभी क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक लिंक है, राइट। गवर्नमेंट कौन आएगा, जो पीपल इलेक्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, वो गवर्नमेंट में आएगा, वो पावर में आएगा, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो पीपल्स, जो लोग होते हैं, जो हमारी जनता होती है, राइट, जो सिटीजन होते हैं देश के, इंडिया के, कंट्री के, तो क्या करती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो डिमांड्स है, वो पूरी करने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है, राइट। नाउ changing nature of political party system in India. Now, the Congress was a strong political party in the post-independent period. Congress had a majority as center and in the most of the state. Indian politics was controlled by Congress party. This era was described as the era of single dominant party system. Now, अब पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कैसे हो रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंट, राइट, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद जो कांग्रेस पार्टी है, वो बहुत बोलते सबसे मेन कैंडिडेट थी, राइट, मेन पार्टी थी। इसके सामने कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती, राइट, या इनका इन्फ्लुएंस बहुत था पीपल्स के ऊपर, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत था, अंडरस्टूड। तो अल्टीमेटली मोस्टली जो पार्ट ये गवर्नमेंट है, किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट ये कांग्रेस के कंट्रोल में थी, ठीक है। अल्टीमेटली इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में दोनों में इन्होंने राज किया हुआ, राइट, वो एरा
हेलो सर, आवाज बंद नहीं आ रहा है आपका। Second point, the non-Congress party came together and challenged single dominant party in 1977. जो अलग अलग पार्टी थी कांग्रेस छोड़ के, वो लोग क्या हुआ, सब साथ में आए वो लोग, और 1987 में उन्हें चैलेंज किया उसको, कांग्रेस पार्टी को. Now third one, after the 1989 Lok Sabha election, system of one party emerging as dominant party came to an end. अब 1989 में लोकसभा में इलेक्शन में जो इमर्जिंग पार्टी थी, राइट, जो अलग अलग पार्टी थी, वो लोग पावर्स में आए. डोमिनेटिंग पार्टी क्या हुआ उस टाइम पे, खत्म हो, कांग्रेस पार्टी राज थोड़ा खत्म हुआ वहां पे. सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगेन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिशंस गवर्नमेंट. कोलिशन मतलब संगठन, मतलब साथ में आना, साथ में सरकार बनना. बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट तो साथ में संगठन, वैसा गठबंधन में बनाना. The belief that coalition government bring instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system established in India. Right? जो नई नई coalition मतलब गठबंधन जैसी सरकार लाना, गवर्नमेंट फॉर्म हुआ इंडिया में, स्टेबली established हो गया, राइट. वो now let us know about some important parties in India. अभी इंडिया में क्या क्या अलग नई नई पार्टीज थी, कौन सी पार्टी है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग. नाउ नेशनल पार्टीज, फर्स्ट वन इंडिया नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस ये अपनी पहली पार्टी थी पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद, राइट. The Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. Group with different ideology had come together in this nationalistic movement. After independence, the Congress emerged as dominating party political parties. अभी कैसा है, जो इंडियन कांग्रेस पार्टी है, ये हमारे प्री इंडिपेंडेंट के पहले भी थी, मतलब इंडिपेंडेंट के पहले भी थी, राइट. इसमें अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसके अंदर अलग अलग विचारधारा वाले थे. सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से थे, फिर उन्होंने अपनी तोड़ के आजादी सेना बनाई, राइट. फिर ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राइट, ये सब लीडर कौन से थे, ये सब कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कांग्रेस में थे. इन्होंने कांग्रेस स्टैब्लिश किया था, और अल्टीमेटली जो कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया है अल्टीमेटली, ठीक है. जो कांग्रेस पार्टी इमर्ज हुआ है ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस पार्टी बना के दिया हुआ है, राइट. Now working for national independence, groups with different ideology had come together in the nationalistic movement. After independence, the Congress emerged as the most dominant political parties. Independent होने के बाद कांग्रेस एक most dominant political parties बन के सामने आया. The parties from the beginning follow the policy of secularism, all around development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of the society. Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives. The parties believe in democratic socialism, social equality and international peace. Now, इनका एजेंडा क्या था, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे ये, ठीक है, सर्कुलरिज्म बिलीव करते थे, और ऑल ओवर अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको इक्वल राइट, और जो अलग अलग छोटी जात माइनॉरिटीज वाले थे उनको क्या है, उनको वेलफेयर, उनके लिए कुछ करना, और जो छोटी जात के जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन में है उनके लिए कुछ ना कुछ करना, राइट, उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाना. नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, जिसको हम बोलते हैं CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दिस पार्टी based on the communist ideology was established in 1925. This was established in 1925. It is an old party in India. The party worked for the welfare of laborers and workers. This party worked for the laborers and workers. The party opposed capitalism. The party leadership developed a difference in 1962 over the issues of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. Now this led to a split in Communist Party of India, separate party, the Communist Party of India, Marxist was formed. Now अभी पार्टी का क्या था, ये पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती थी, राइट. इनका क्या था कि हम डिक्टेटरशिप लाए. जो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में है, सोवियत यूनियन में है, राइट, वैसी पार्टी ये लोग यहाँ पे फॉर्म किए. ये पार्टी उस पार्टी से बिलोंग करती है, उस विचारधारा से, उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है. नाउ थर्ड वन, भारतीय जनता पार्टी, सब जानते हैं इसको, भारतीय जनता पार्टी को पढ़ लेते फिर भी. भारतीय जनता पार्टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल. भारतीय जन संघ was established in 1951. भारतीय जन संघ was established in 1951. This party was merged with Janata Party that was established in 1977. The Janata Party could not survive. राइट, पहले जनता पार्टी इसके मर्ज हुई, जनता पार्टी सर्वाइव नहीं रह पाई, ठीक है.
जनता पार्टी क्या सरवाइव नहीं कर पाई। Now, Bharatiya Janata Party is an important party at the national level. Bharatiya Janata Sangh was established in 1951, right? Bharatiya Janata Party इसके establishment इसके पहले ही बहुत सी पार्टी इमर्ज हुई, इसके बाद ये पार्ट में निकला हुआ है तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी। देखो कैसे मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पे अपने पार्टी है, राइट। भारतीय जन संघ वो established 1951, भारतीय जन संघ करके पार्टी थी 1951 में, क्या हुआ स्टैब्लिश हुआ। दिस पार्टी वाज मर्ज विद जनता पार्टी, ये पार्टी जनता पार्टी से क्या हुई, मर्ज हो गई, राइट। स्टैब्लिश इन 1977। जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, जनता पार्टी के सर्वाइव नहीं कर पाई चीजें, वो नहीं रहे पॉलिटिकल पार्टीज। these were split into parties and Bharatiya Janata Sangh, the component party of Janata Party, established a new party in 1980। स्प्लिट होने के बाद नई पार्टी इमर्ज हुई 1980 में, that is भारतीय जनता पार्टी। The party stand for the protection of Indian culture and tradition. The party gives importance to economic reforms. Now जो भारतीय जनता पार्टी है 1980 में इमर्ज हुई स्प्लिट होने के बाद, राइट। 1980 में इमर्ज हुई भारतीय जनता पार्टी नए नाम के साथ, ठीक है। इनका जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन है इनको प्रोटेक्ट करना, इनको रखना, राइट। अभी आज भी तुम देखो हमारे जो इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके उनके एजेंडेस वही होते हैं, ताकि इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, प्रिजर्व रहे, मतलब सब यही फॉलो करते रहे, ये लुप्त ना हो जाए। आज भी उनका एजेंडा यही है, राइट। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज सीपीआई, अभी हमने ऊपर पढ़ा। दिस पार्टी proclaims socialism, secularism and democracy. The party opposed imperialism. Party policy is to protect the interest of worker, farmer and landless labor. ऊपर ही पढ़ लिया हम लोगों ने कि इनका क्या रोल था, ठीक है। इनका एजेंडा क्या था, ये फार्मर्स और वर्कर्स इनके लिए काम करते थे, राइट, इनके फेवर में थे। नाउ बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी professed the socialist ideology. In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the minority. जो छोटी जात है उनके इंटरेस्ट में, मतलब उनके लिए उनके अधिकार के लड़ने के लिए ये पार्टी फॉर्म हुई, इमर्ज हुई, राइट। द माइनॉरिटी आर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, regional minorities and other backward classes together and constitutes a majority. The party aims to give power in the hands of the majorities, right। ये इसका विचारधारा क्या था कि इनका आइडियोलॉजी क्या था कि जो माइनॉरिटीज कास्ट है, जैसे शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी हो गए, इनके हित में काम करना, राइट। इनकी आइडियोलॉजी ये थी। नाउ नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, in 1989 there was split in the Congress party and National Congress Party was established। कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, तो नेशनल एनसीपी तुम्हारा 1980 में क्या हुआ, नया पार्टी फॉर्म हुआ, ठीक है। शरद पवार ने बनाया ये। द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। द पार्टी वाज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1989 टू 2014 इन कोलिशंस विद द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी संगठन में आके कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर गया उन्होंने। 1990 से 2014 तक महाराष्ट्र में पावर में रही, सरकार इनकी रही, राइट। नाउ Nationalistic Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress that centered from 2004 to 2014। तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, राइट, दोनों कोलिशन में रह के 2014 में सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट थी, राइट। नाउ तृणमूल कांग्रेस, राइट, ये किसकी है, टीएमसी, राइट। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये उसकी हो गई, क्या नाम है, ममता बनर्जी। All India Tribal Congress Party was established in 1989. Election Commission gave the party recognition as National Party in 2016। 2014 में नेशनल पार्टी का इसको recognition मिल गया। The party to support democracy, secularism, protection of interest of weaker section of the society, right। The mostly तुम देखा जाओ तो हर पार्टी डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म में सपोर्ट करती है। Understood? Now लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी जो लेक्चर रहेगा हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि अभी करने जाओ तो टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर भी क्लासेस का, तो ये जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी कुछ डाउट रहेगा मुझे मैसेज करो, पूछो।